Today we are going to start chapter number 2, and that chapter is about classification of businesses. So let's see which topics we have in this chapter. There are 3 topics in chapter number 2. The first topic will be sectors of industry: primary sector, secondary sector and tertiary sector. And then we'll be discussing the changes in sectors of industry. Then we'll have sectors of economy, the private sector and public sector. So types of business activity on the basis of sectors of industry. There are 3 types of business activity on the basis of sectors of industry. These are also called levels of economic activity: primary sector business activity, secondary sector business activity and tertiary sector business activity. What is meant by primary sector business activity? It is a business activity which is involved in extraction of natural resources. That is called primary sector business activity. For example, farming, drilling of oil are examples of primary sector business activity. There might be few other examples. This business activity is involved in extraction of natural resources. For example, extraction of wood from trees, that is also primary sector business activity. In Pakistan, primary sector of industry is dominant. Dominant means the most important because it contributes more in GDP and it has employed major portion of workforce of Pakistan. Next is secondary sector business activity. A business activity which is involved in transforming raw inputs into finished goods is called secondary sector business activity. For example, shoemaking, textile manufacturing are the examples of secondary sector business activity. All manufacturing firms are in secondary sector of industry. Increase in secondary sector of industry over the period of time is called industrialization. And decrease in secondary sector of industry is called deindustrialization. Let me show you in your book. An example is shown in your book. Now see here, this wood cutter is extracting wood from the trees. So that will be extraction of natural resources. It is primary sector business activity. And this is furniture maker converting wood into the shape of chairs and tables. That is secondary sector business activity. Any question? No sir. अब सपोज कर लो कि अब मैं जस्ट ये फिगर्स अज्यूम कर रहा हूँ. सपोज कर लो कि पाकिस्तान में 50 मिलियन बिजनेस फर्म्स हैं. इन 50 मिलियन बिजनेस फर्म्स में से सपोज कर लो कि 30 मिलियन बिजनेसेस प्राइमरी सेक्टर में हैं और 15 मिलियन सेकेंडरी सेक्टर में हैं और 5 मिलियन टर्शरी सेक्टर में हैं. अगर ये सेकेंडरी सेक्टर बिजनेसेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज होना शुरू हो जाएं, फॉर एग्जांपल 15 मिलियन से 25 मिलियन हो जाएं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इंडस्ट्रियलाइजेशन. अब आप देख रहे हैं कि आउट ऑफ 50 मिलियन ज्यादातर बिजनेसेस प्राइमरी सेक्टर में हैं. इसका मतलब ये आउटपुट भी ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे और ये जॉब्स भी ज्यादा क्रिएट करेंगे. इसलिए हम प्राइमरी सेक्टर को डोमिनेंट सेक्टर समझेंगे. नेक्स्ट वन इज टर्शरी सेक्टर बिजनेस एक्टिविटी. A business activity which is involved in providing services to people and organizations is called tertiary sector business activity. For example, retailing, banking are examples of tertiary sector business activity. मैं ये आपको जो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहा हूँ ये किस सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री में आएगा? सर टर्शरी में. जी, tertiary sector business activity. Normally, tertiary sector of industry is dominant in developed countries like UK and USA. All service firms are in tertiary sector of industry. आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दी हुई है वो रिटेलर की एग्जाम्पल है. कोई भी रिटेलर जहाँ से जाके आप
चीज़ें बाय करते हैं, ये एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होती है, खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते, दे जस्ट हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट्स, सो दे आर टर्शरी सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस. Tertiary sector of industry increases in deindustrialization due to shift of manufacturing firms in less developed countries. इसकी मैं आगे आपको डिटेल बताता हूँ. Changes in sectors of industry over time. Relative importance of each sector is measured by employment levels as a percentage of total employment. Employment provided by the sector divided by total employment multiplied by 100%. For example, एक कंट्री में टोटल 200 मिलियन वर्कर्स हैं, इनमें से 100 मिलियन वर्कर्स प्राइमरी सेक्टर में हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि 50% जॉब्स प्राइमरी सेक्टर ने क्रिएट की हैं और बाकी 50% सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर. तो प्राइमरी सेक्टर डोमिनेंट हो गया. दूसरी चीज इसमें हम मेजर करते हैं आउटपुट लेवल ऑफ द सेक्टर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी. किसी को आइडिया है कि जीडीपी का क्या मतलब है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. इसका मतलब क्या बनेगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. Sir, production of goods and services over a specific time. जीडीपी. जी, इसका कोई मीनिंग दानिया बेटा, जीडीपी का क्या मतलब होता है? उसैद. Gross domestic product. ग्रॉस. Sir, production of goods and services. ग्रॉस का मतलब है टोटल, डोमेस्टिक का मतलब है प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री, और प्रोडक्ट का मतलब है आउटपुट, गुड्स एंड सर्विसेज. तो जीडीपी का मतलब होता है टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री इन 1 ईयर, यानी आउटपुट ऑफ द कंट्री. सो इस ये जीडीपी है टोटल आउटपुट ऑफ द कंट्री. इसमें अगर प्राइमरी सेक्टर को हम मान लें कि वो डोमिनेंट सेक्टर है, तो वो ज़्यादा परसेंटेज जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा. फॉर एग्जांपल, जीडीपी है $500 मिलियन. इस $500 मिलियन में से 300 मिलियन अगर प्राइमरी सेक्टर आउटपुट बनाए, तो इसका मतलब पूरे कंट्री की 60% आउटपुट प्राइमरी सेक्टर ने बनाई है. सो इसलिए हम प्राइमरी सेक्टर को डोमिनेंट कहेंगे. Increase in secondary sector of industry is called industrialization. Industrialization is observed in developing countries. Developing countries are growing countries or poor countries, you can say. Like Pakistan is less developed country, Bangladesh, Sri Lanka, these are less developed countries. तो less developed countries में जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ती है उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं. Decrease in secondary sector of industry is called deindustrialization, and deindustrialization is observed in developed countries like USA, UK, France, Germany. अब deindustrialization की क्या रीजंस हैं? सबसे पहली रीजन तो ये है कि डेवलप्ड कंट्रीज में जब लोगों की इनकम बढ़ती है, दैट लीड्स टू हायर लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड हेंस हायर डिमांड्स ऑफ सर्विसेज सच एज टूरिज्म एंड होटल्स. सो इसको हम ज़रा यहाँ पर देख लेते हैं. लेट्स सपोज ये एक कंट्री है यूएसए. यूएसए में एक कार मैन्युफैक्चरर है. अब यूएसए क्योंकि डेवलप्ड कंट्री है, तो यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी है और यहाँ पर लोगों की इनकम भी ज़्यादा है. हाई इनकम ऑफ पीपल. हाई इनकम की वजह से यूएसए में सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा होती है. हायर डिमांड ऑफ सर्विसेज. सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस ओपन होना शुरू हो जाती हैं. होटल्स, रिटेलर्स एंड ऑल दैट, और सर्विस सेक्टर ग्रो करना शुरू कर देता है. सर्विस सेक्टर or tertiary sector will grow in developed countries.
इसके साथ साथ ये यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग बिकम्स एक्सपेंसिव। मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर क्यों एक्सपेंसिव होती है? क्योंकि लेबर एक्सपेंसिव होती है, लेबर रेट्स या वेजेस ज़्यादा होते हैं, रेंट्स ज़्यादा होते हैं, इसके अलावा यूटिलिटीज़ एक्सपेंसिव होती हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या करते हैं? ये डेवलप्ड कंट्रीज़ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री यहाँ से निकालते हैं और लेस डेवलप्ड कंट्री में ले जाते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग, कार मैन्युफैक्चरर जनाब, अमेरिका से इन्होंने अपना प्रोडक्शन प्लांट बंद किया और इंडिया में कार मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ना शुरू हो गई तो यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है इंडस्ट्रियलाइजेशन, जबकि अमेरिका में स्टार्ट हो जाएगी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। समझ आ गई है आपको? जी सर। तो अमेरिका में या डेवलप्ड कंट्रीज में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों होती है? मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी डिक्रीज क्यों होती है? बताएं जी। सर इधर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ जाती हैं जिसकी वजह से लेबर रेट्स वगैरह एक्सपेंसिव हो जाते हैं, इसलिए सर। रेंट्स बढ़ जाते हैं, यूटिलिटीज एक्सपेंसिव हो जाती हैं, बिजनेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो जो भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो असल में ढूंढ रहे होते हैं ऐसी जगह जहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो। तो वो कार मैन्युफैक्चरर हो या मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर हो, वो डेवलप्ड कंट्री से अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बंद कर देते हैं और फैक्ट्री को इंडिया, चाइना, श्रीलंका, पाकिस्तान यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर लेबर सस्ती होती है, रेंट्स कम होते हैं, टैक्सेस कम होते हैं। तो इसकी वजह से लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है और डेवलप्ड कंट्रीज डी इंडस्ट्रियलाइज हो जाते हैं। ड्यू टू हायर कंपटीशन इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, फर्म्स सीक लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन in developing economies such as China, India, where labor costs are very low. So that is why deindustrialization will start in developed countries. अब deindustrialization में दो चीज़ें हैं। एक तो deindustrialization में सेकेंडरी सेक्टर डिक्रीज होगा, दूसरा deindustrialization में टर्शरी सेक्टर इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पर लोगों की इनकम ज़्यादा है और हायर इनकम की वजह से सर्विसेज की डिमांड भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से टर्शरी सेक्टर ग्रो करेगा। Importance of each sector is different in different countries and different economies. Tertiary sector of industry is dominant in developed countries, which are rich countries. Secondary sector of industry is dominant in developing countries. And primary sector of industry is dominant in very poor countries like Somalia and let's suppose some other countries which are very poor countries. कोई क्वेश्चन आपका? जी बेटा, कोई क्वेश्चन? नो सर। उसैद, दानिया बेटा, कोई क्वेश्चन आपका? नो सर। ऑलराइट जी, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी का। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में सारी इकोनॉमीज मिक्स्ड इकोनॉमीज हैं। इकोनॉमी की क्या डेफिनेशन है? Economy is an area where goods and services are produced to satisfy the needs and wants of people. That is called economy. For example, Pakistan economy. अब economy की definition को समझते हैं। economy की definition के लिए पहले आपके पास एक area होना चाहिए, geographical area। तो वो area एक country हो सकता है, country से ज़्यादा बड़ा area भी हो सकता है, कंट्री से छोटा एरिया भी हो सकता है। तो लेट्स सपोज आप पाकिस्तान को कंसिडर कर लें। उसके बाद आपने ये देखना है कि क्या पाकिस्तान में गुड्स एंड सर्विसेज बन रही हैं या नहीं। अगर पाकिस्तान में कुछ बिजनेसेस हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं तो हम पाकिस्तान को एक इकोनॉमी कह सकते हैं। उसको हम कहेंगे पाकिस्तान इकोनॉमी या इकोनॉमी ऑफ कंट्री या नेशनल इकोनॉमी। चलें जी, आप ये समझ लें कि हम एक एरिया डिफाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान का एक सिटी जो है मुल्तान। अब आप ये देखें, मुल्तान में कुछ गुड्स एंड सर्विसेज बन रही हैं। जी सर। सो देयर आर सम बिजनेस फर्म्स
in Multan. For example, there are schools, there are some factories, there are some retailers, there are some banks. So there are a lot of business firms in Multan. That is why we can call Multan as economy. For example, ये एक एरिया है डिजर्टेड आइलैंड. यहाँ पर कोई भी बिजनेस नहीं है, नो बिजनेस फर्म. कोई भी यहाँ पर नहीं रहता, कोई बिजनेस फर्म नहीं है यहाँ पर. इसको हम इकोनॉमी कह सकते हैं? नहीं सर. सो दैट इज नॉट एन इकोनॉमी. इकोनॉमी के लिए बिजनेस फर्म्स का होना ज़रूरी है. अगर कोई जियोग्राफिकल एरिया हो जिसमें कोई भी बिजनेस फर्म ना हो तो उसको हम इकोनॉमी नहीं कह सकते. तो इकोनॉमी को बेसिकली हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ बिजनेस फर्म्स इन एन एरिया, क्योंकि ये बिजनेस फर्म्स ही हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगी. देयर इज़ नो इकोनॉमी ऑफ मून, क्योंकि चांद के ऊपर कोई बिजनेस फर्म्स नहीं है. नो इकोनॉमी ऑफ माउंट एवरेस्ट, नो इकोनॉमी ऑफ डिजर्टेड आइलैंड्स. मुल्तान इकोनॉमी को हम नेशनल इकोनॉमी नहीं कहेंगे, इसे हम लोकल इकोनॉमी कहेंगे. नॉर्मली जो इकोनॉमी का वर्ड यूज होता है वो एक कंट्री की इकोनॉमी के लिए होता है, नॉर्मली बट नॉट ऑलवेज. सो नॉर्मली वर्ड इकोनॉमी मींस नेशनल इकोनॉमी, लेकिन कंट्री से ज़्यादा बड़ा भी एरिया हो सकता है. जिस तरह एशियन इकोनॉमी में कई कंट्रीज़ हैं, उसमें पूरा एशिया है. ग्लोबल इकोनॉमी में पूरी दुनिया है. लेकिन नॉर्मली जो इकोनॉमी का वर्ड है वो हम यूज़ करते हैं इकोनॉमी ऑफ कंट्री के लिए. इकोनॉमिक सिस्टम की डेफिनेशन देखते हैं. रिसोर्स एलोकेशन मैकेनिज्म इन अ कंट्री इज कॉल्ड इकोनॉमिक सिस्टम. आपने शायद बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चंस पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस. ये जो इकोनॉमिक क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर इकोनॉमिक सिस्टम देता है. सो इकोनॉमिक सिस्टम इज़ द रिसोर्स एलोकेशन मैकेनिज्म. हमारे बिजनेस के चैप्टर में मिक्स्ड इकोनॉमी की डेफिनेशन है और इसके बाद सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हम डिस्कस करेंगे. मिक्स्ड इकोनॉमी इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम रन बाय बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर. बोथ ऑफ देम वर्क फॉर देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स. प्राइवेट सेक्टर का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड गवर्नमेंट वर्क्स फॉर सोशल वेलफेयर. सोशल वेलफेयर का क्या मतलब है जी? सर पब्लिक के लिए अच्छी चीज़, हॉस्पिटल वगैरह जी. टेकिंग केयर ऑफ, एनजीओज वगैरह. टेकिंग केयर ऑफ पीपल. सोशल वेलफेयर मीन्स टेकिंग केयर ऑफ पीपल. सो मिक्स्ड इकोनॉमी के जो फीचर्स हैं उसमें प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एग्जिस्ट करेगा. प्राइवेट सेक्टर इज ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड पब्लिक सेक्टर इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट. प्राइवेट एंड पब्लिक ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज. प्रॉफिट मोटिव प्राइवेट सेक्टर फर्म्स का होगा और गवर्नमेंट का मोटिव होगा सोशल वेलफेयर. और रिसोर्स एलोकेशन प्राइवेट सेक्टर में प्राइस मैकेनिज्म यानी डिमांड और सप्लाई फोर्सेस से होगी और गवर्नमेंट सेक्टर में सेंट्रल प्लानिंग से होगी. गवर्नमेंट प्लान करेगी क्या चीज़ें बनानी हैं एंड दीज टू आर यूज्ड फॉर एलोकेटिंग रिसोर्सेज. All economies in the world are mixed economies. Pakistan, China, UK, they are all mixed economies. Mixed economies में दो सेक्टर होते हैं. कुछ बिजनेसेस होते हैं जो गवर्नमेंट की ओनरशिप में होते हैं. इन बिजनेसेस की कलेक्शन को हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर ऑफ इकोनॉमी. And there are some businesses in the ownership of private individuals. Collection of these businesses is called private sector of economy. ठीक है सर. ऑलराइट जी, अब हम इन सेक्टर्स को डिस्कस करते हैं. There are two sectors of economy in mixed economic system: private sector of economy and public sector of economy. Private sector of economy. This is the part of economy which is composed of all business firms owned, controlled and funded by private individuals. This is called private sector of economy. तो इकोनॉमी का वो पार्ट जिसमें
ऐसे बिजनेसेस हैं जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स की ओनरशिप में हो, इसे हम क्या कहेंगे? कलेक्टिवली प्राइवेट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। अब इस प्राइवेट सेक्टर में से एक बिजनेस ले लें अगर, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्राइवेट सेक्टर बिजनेस फर्म। बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बिजनेस फर्म्स की कलेक्शन को हम प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। इसी तरह गवर्नमेंट की ओनरशिप में जो बिजनेसेस होंगे इनको कलेक्टिवली क्या कहेंगे? पब्लिक सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। और अगर इनमें से एक बिजनेस हम ले लें तो इस एक बिजनेस को क्या कहेंगे? पब्लिक सेक्टर बिजनेस फर्म। अब अगर एक बिजनेस पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफर हो जाए तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ अ बिजनेस फ्रॉम पब्लिक सेक्टर ऑफ इकोनॉमी टू प्राइवेट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। और अगर एक बिजनेस प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर में चला जाए तो इसको क्या कहते हैं? नेशनलाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन और नेशनलाइजेशन में क्या फर्क है? अब्दुल्ला, प्राइवेटाइजेशन के बारे में बताएं, व्हाट इज मेंट बाय प्राइवेटाइजेशन? सर प्राइवेटाइजेशन वो होती है जब पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं। पब्लिक सेक्टर बिजनेस की ओनरशिप अगर प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफर हो जाए, यानी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बिजनेस को बेच दे प्राइवेट सेक्टर ओनर्स को, तो इसको प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। जिस तरह खाद फैक्ट्री मुल्तान में है, इसको गवर्नमेंट ने मुशर्रफ दौर में प्राइवेटाइज किया था। पीटीसीएल को गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज किया। उसैद, आप बताएं नेशनलाइजेशन क्या होगी? सर प्राइवेट बिजनेस को पब्लिक करते हैं। प्राइवेट बिजनेसेस अगर गवर्नमेंट बाय कर ले तो इसको नेशनलाइजेशन कहते हैं। प्राइवेट सेक्टर फर्म्स आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। प्राइवेट सेक्टर फर्म्स आर कंट्रोल्ड और रन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। प्राइवेट सेक्टर फर्म्स आर फंडेड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। फंडेड का क्या मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस को स्टार्ट करने के लिए और चलाने के लिए जो पैसा आएगा वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स अरेंज करेंगे। ऑल प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस आर इन प्राइवेट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। In many countries like Pakistan, private sector increases as a result of privatization. Suppose कर लो कि अगर बिजनेसेस प्राइवेटाइज होना शुरू हो जाएं, पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में जाना शुरू हो जाएं, तो पब्लिक सेक्टर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और प्राइवेट सेक्टर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। फर्म्स इन प्राइवेट सेक्टर यूजुअली वर्क फॉर प्रॉफिट। इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए ये अक्सर लेबर कॉस्ट डिक्रीज करते हैं और लेबर कॉस्ट डिक्रीज करने की वजह से कई वर्कर्स को निकाल भी देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तान रेलवे को आप देखें तो पाकिस्तान रेलवे में बहुत सारे लोग जॉब्स कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान रेलवे इस वक्त है पब्लिक सेक्टर में, अगर ये प्राइवेटाइज हो जाए तो प्राइवेटाइज होने के बाद क्या होगा कि पाकिस्तान रेलवे में से कई वर्कर्स को प्राइवेट ओनर्स निकाल देंगे लेबर कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए। इसके अलावा अगर पाकिस्तान रेलवे प्राइवेटाइज हो जाए तो इसकी प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी। प्राइसेस क्यों बढ़ेंगी? बिकॉज प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्रॉफिट मोटिव होता है। जी, प्रॉफिट मोटिव होता है। ब्लूमफील्ड हॉल स्कूल इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइवेट सेक्टर बिजनेस इन पाकिस्तान। कोई क्वेश्चन आपका? नो सर। Alright जी, public sector of economy. The part of economy which is composed of all the business firms owned, controlled and funded by local and central government. Local और central government में क्या फर्क है? जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट है या मुल्तान गवर्नमेंट है, ये लोकल गवर्नमेंट होगी, और जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। तो चाहे पाकिस्तान गवर्नमेंट के अंडर वो बिजनेस काम कर रहा हो या लोकल गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा हो, उसको पब्लिक सेक्टर बिजनेस कहेंगे। पब्लिक सेक्टर फर्म्स आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट, दे आर कंट्रोल्ड और रन बाय गवर्नमेंट, दे आर फंडेड बाय गवर्नमेंट बाय यूजिंग टैक्स रेवेन्यू। गवर्नमेंट लोगों से और ऑर्गेनाइजेशन से टैक्स कलेक्ट करती है, ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, और टैक्स कलेक्ट करने के बाद वो टैक्स रेवेन्यू से गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को चलाती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मुल्तान में बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी है, निश्तर हॉस्पिटल है, ये सारे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। BZU के सारे एक्सपेंसेस
निश्तर कॉलेज के सारे एक्सपेंसेस गवर्नमेंट बियर करती है। गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? टैक्स रेवेन्यू से। ऑल पब्लिक सेक्टर फर्म्स आर इन पब्लिक सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। इन मैनी कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, पब्लिक सेक्टर इज डिक्रीजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। फर्म्स इन पब्लिक सेक्टर दे वर्क फॉर सोशल वेलफेयर। पब्लिक सेक्टर फर्म्स कैन बी म्यूनिसिपल एंटरप्राइजेस। म्यूनिसिपल एंटरप्राइजेस वो फर्म्स होती हैं जो लोकल गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही हों, जिस तरह म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मुल्तान है। दे कैन ऑल्सो बी पब्लिक कॉर्पोरेशंस, दे आर अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। PIA, WAPDA, Pakistan Railway, WASA, these are the examples of public sector firms in Pakistan. Any question? No, sir. No, sir. Alright जी, this is the end of today's chapter number 2. तो आज हमने chapter number 2 पढ़ा है। chapter number 2 में हमने कौन से topics discuss किए हैं? Sectors of industry, primary sector, secondary sector and tertiary sector. इसके अलावा हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, और हमने ये डिस्कस किया है कि हम कैसे डिटरमिन करेंगे कि कौन सा सेक्टर किसी भी कंट्री में डोमिनेंट होता है, बाय लुकिंग एट द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएटेड बाय द सेक्टर एंड बाय इट्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स GDP। इसके अलावा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर हमने डिस्कस किए हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 2। नेक्स्ट टाइम विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 3। आज का बिजनेस का लेसन हम यहीं ख़त्म करेंगे और 3 से 4 मिनट के बाद हम इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर।